اس نے کہا کہ 5 منٹ فائرنگ ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا یہ منصوبہ تھا؟ اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس میں آپ 2 ججز شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور 3 ججز اور سربراہ اس کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جو لوگ ہیں جسٹس صاحبان، ان کو آپ بٹھائیں۔ تیسرا جو اس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ رینجرز بلائے گئے تھے یا نہیں بلائے گئے تھے؟ اگر بلائے گئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے شوٹ ٹو کل، یعنی دیکھتے ہی موقع پہ گولی مار دو، جو بھی نظر آئے اس کو گولی مار دو؟ جو شہداء ہیں ان کی تعداد چھپانے کے لیے جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز گئے تھے، مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر، ان کو سر پہ بوریاں ڈال کے اٹھایا گیا، اور پھر الحمدللہ بھی ثاقب بشیر سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور جو کیس ہے مطیع اللہ جان کے خلاف، یہ سارے انویسٹیگیٹو آپ کی طرح صحافی ہیں اور یہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، اور سچ دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس کیس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے اور عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوری طور پہ کویش کیا جائے۔ یہ کیس اگر چل گیا تو پھر کسی بھی شریف آدمی کی گاڑی روک کے اس کے اوپر وہ پولیس مقابلے جو کبھی پنجاب میں ہم سنا کرتے تھے، ہوا کرتے تھے، وہ اب کیے جا رہے ہیں، اور ان پولیس مقابلوں میں آپ نے دیکھا جس کے پاس سرکاری گن تھی وہ مارا گیا، اور کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہے۔ یہاں مختلف نمبر چل رہے ہیں شہداء کی تعداد کے حوالے سے۔ میں اس پہ سب سے پہلے میں جو صحافیوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور بے رحمی کا جو سلوک ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور میں عدلیہ سے ریپیٹ کر کے کہ آپ نوٹس لیں۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کی آواز قوم تک پہنچاتے ہیں، آپ کی موقف کو بھی قوم تک پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں کی اغوا کاری اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرا جو میں موجودہ نظام ہے اس کے لیے میں 5 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وفاقی وزراء نے یہ علیحدہ علیحدہ نہیں کہا؟ ایک نے کہا کہ ہم چھٹا ماریں گے۔ چھٹا مارنا پنجابی میں کہتے ہیں برسٹ مارنے کو، اور برسٹ جو ہے وہ جو فوجی سکیل، آرمی سکیل اور پولیس سکیل گنیں ہوتی ہیں ان میں سے ہی برسٹ نکل سکتا ہے۔ عام جو گن ہے اگر کسی نے 12 بور پکڑی ہوئی ہے تو اس میں سے زیادہ 2 نالی سے 2 فائر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان وزراء کے میں ایک نے یہ کہا اور دوسرا جو وزیر ہے اس نے کہا کہ 5 منٹ فائرنگ ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا یہ منصوبہ تھا؟ اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس میں آپ 2 ججز شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور 3 ججز اور سربراہ اس کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جو لوگ ہیں جسٹس صاحبان، ان کو آپ بٹھائیں۔ تیسرا جو اس کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ رینجرز بلائے گئے تھے یا نہیں بلائے گئے تھے؟ اگر بلائے گئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے شوٹ ٹو کل، یعنی دیکھتے ہی موقع پہ گولی مار دو، جو بھی نظر آئے اس کو گولی مار دو؟ جو شہداء ہیں ان کی تعداد چھپانے کے لیے جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز گئے تھے، مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر، ان کو سر پہ بوریاں ڈال کے اٹھایا گیا، اور پھر الحمدللہ بھی ثاقب بشیر سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور جو کیس ہے مطیع اللہ جان کے خلاف، یہ سارے انویسٹیگیٹو آپ کی طرح صحافی ہیں اور یہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، اور سچ دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس کیس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب سے اور عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوری طور پہ کویش کیا جائے۔ اور وہ ایک شخص ہے جو ان سب کی آبرو کے لیے، ہم سب کی آبرو کے لیے کھڑا ہے، وہ جب کہے گا پھر اسلام آباد کا رخ ہوگا، وہ جب کہے گا پھر باہر نکلیں گے،
पाकिस्तान किसी ने फतह करके हमें नहीं दिया, ना किसी के बाप के नाम की ये जागीर है कि लिख के उसको दे के गए हैं कायदे आजम। ये सबका है, इसके हर हिस्से में जलसा करेंगे, इसके हर हिस्से में एहतजाज। ये शहरियों का बुनियादी हक है और उनको रोकने वाले पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और बड़ा खतरनाक खेल ये खेला गया है कि जो शोहदा हैं उनकी बड़ी तादाद या KPK से है और या बलूचिस्तान से है। मेरी अपनी तहसील के 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो KPK और बलूचिस्तान के सूबों से है, जो छोटे सूबे हैं। उनके लिए रास्ते बंद करके उन पे गोलियां बरसा के उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे फेडरेशन के लिए और गोलियां चलाने वालों के लिए। मैं तो वकीलों की सियासत नहीं करता, लेकिन वकील सारे जो 2 ग्रुप्स उनके अक्सर इलेक्शन लड़ते हैं हर बार में, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं जो मैंने पहले कही, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मैंने हवाला दिया रात को, वो भी। इसलिए वकील इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आइन का राज होगा, किसी शख्स की हम गुलामी नहीं करेंगे। पहले ही पाकिस्तान में तकरीबन 36 साल मार्शल लॉ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और आधा पाकिस्तान कायदे आज़म का तुड़वा दिया है। मैंने पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ के जज साहब को सुनाया, जिसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, लीगल पॉइंट, कि फर्ज जुर्म से पहले अगर दरखास्त आ गई बरियत की तो उसका फैसला होगा। आज हमने दरखास्त बरियत की दाखिल की है, उसका फैसला पहले होगा, कानून ये कहता है। और उनके हुकूक, एक शहर में ममनू है इस्लामाबाद, उसमें दाखिले से भी पाकिस्तान के शहरी महरूम किए जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त जिस हुकूमत को बिठाया गया है, हारे हुए लश्कर की हुकूमत, वो हुकूमत है जिसने पहले सब्जाजार किया, उसके बाद मॉडल टाउन किया और फिर इस्लामाबाद मैसेकर किया। ये जनरल डायर के बाद जो इस्लामाबाद है, वो मैं पहले आपको ये बताऊं कि पिंडी तहसील का एक हिस्सा है, साबिक जो पिंडी तहसील थी। सो प्रैक्टिकली वो पंजाब ही था। तो जो ईस्ट पंजाब है उसमें जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का कत्लेआम किया। इसी तरह से जिनको पहले बिठाया गया और उन्होंने कत्लेआम 2 जो मैं बता चुका हूं, उसके बाद इस्लामाबाद मैसेकर उन्होंने किया। हाफिज शाकिर महमूद अवान की बाजियाबी के केस की समाअत आज सुबह से 2 दफा हो चुकी है। उनकी वालदा मोहतरमा की तरफ से इनके भाई मेरे साथ खड़े हैं और सुबह जब अदालत के सामने बताया कि इसको रात को उठाकर लेकर गए हैं और हमने पता कराया, पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, FIA वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत पाकिस्तान को, सेक्रेटरी होम पंजाब को, IG पंजाब को, डायरेक्टर जनरल FIA और बाकी सबको फरीक बनाया गया था। अदालत ने अभी हुक्म दिया सुबह कि पहले 11 बजे तक पेश किया जाए इंफॉर्मेशन लेकर कि किसने उठाया है। आज अभी दोबारा जब हियरिंग शुरू हुई तो आए बाएं शाएं करने की कोशिश की कि नहीं जी हमें वक्त दे दिया जाए। अदालत ने कहा ABS में उसी दिन फैसला करना होता है, बताना होता है कि क्या हालात और वाकयात हैं, सारी चीजें सामने रखनी होती हैं। एक बंदा अगवा है और उसमें खास तौर पर अभी अशफाक साहब आपको बताएंगे, आपके सदर हैं, वो बताएंगे कि उन्होंने कोर्ट की तवज्जो किस तरफ दिलवाई है। और अब 3 बजे दोबारा हियरिंग होनी है जिसमें IG पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल या CEO सेफ सिटी को भी बुलाया गया है और सुबह 12 बजे 28 तारीख को रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह 10 बजे की CCTV फुटेज आसपास के इलाके की वो भी लेकर आनी है और अदालत के सामने रखना है। और आज वीडियो दिखाई गई अदालत के सामने, जब वो लोग आए हैं, 20 के करीब लोग थे, जब वो आए हैं, आते लोगों को डराया धमकाया है, किसी को बैठने नहीं दिया वहां पर,
लोगों के डरा के दरवाजे बंद कराए हैं, दीवारें फलांगी हैं और चादर और चार दीवारी की पामाली की है। कोई वारंट नहीं था। भाई मौजूद है शाकिर अवान के, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। और लेकिन जो बदमाशी है वो उठाकर लेकर चले गए वहां से, कोई वारंट नहीं दिखाया। और अगर इस्लामाबाद से उठाकर लेकर गए हैं तो ना ट्रांजिटरी रिमांड ना कोई चीज नहीं, मुतलका मैजिस्ट्रेट से भी नहीं लेकर गए। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी पूरी सहाफी बरादरी यहां साथ खड़ी है और वो जब तक हाफिज शाकिर अवान की बाजियाबी नहीं होती वो खड़ी रहेगी। और 3 बजे दोबारा आईजी जब पेश होंगे तो ये सब पेश होंगे। अशफाक साहब क्या कहते हैं? आज जब ठीक है आ रही हो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो पहले तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि आप हमें तमाम जो फ्रीकैन हैं उनसे पूछकर बताएं कि शाकिर महमूद अवान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो किधर हैं, उनको पता करके बताएं। तो उसके बाद जब आधे घंटे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो एसएसपी ऑपरेशन अदालत में पेश हुए और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पहले ही लम्हे ये कहा कि हमें टाइम दिया जाए, पीर के रोज तक समाअत मुलतवी कर दी जाए, हम अदालत को पॉजिटिव मुस्बत नताइज अदालत के सामने रखेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये हफ्से बेजा की पिटीशन है, एक बंदा रात से पूरे 32-34 घंटे हो गए वो लापता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे तारीख नहीं पड़ती, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आया ये बंदा किसी के पास है या नहीं है, अगर है तो सामने लाएं, अगर नहीं है तो फिर दूसरी जो एज पर लॉ है वो प्रोसीडिंग शुरू की जाए। फिर जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दोबारा इस्तदा की तो अदालत ने उनको टोक दिया और कहा कि आप खामोश हो जाएं और इस पर तारीख नहीं पड़ेगी, इस पर आज ही आपको बताना पड़ेगा। इस दौरान जब एसएसपी ऑपरेशन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। तो अजहर सिद्दीक साहब ने फिर वो वीडियो दिखाई जिसमें शाकिर महमूद को लेकर जा रहे थे, वो कोर्ट में वीडियो दिखाई गई। उसके बाद फिर जब मैंने अदालत से इस्तदा की कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो जिस पर अदालत की इजाजत से मैंने अदालत को ये बताया कि शाकिर महमूद को जब गिरफ्तार करने आए तो उनको भी थप्पड़ मारे गए, उनके घर वालों के सामने उनके वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सीधा सीधा केस है, इसमें कोई झोल नहीं है। आईजी पंजाब को तलब कर लिया जाए और पूरा लाहौर जो सेफ सिटी कवर कर रहा है, सारे कैमरों की फुटेज है, तो ये सीसीटीवी फुटेज को भी छोड़ दें, सेफ सिटी से फुटेज मंगवा लें, उस टाइम से लेकर 2-4 घंटे आगे की सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, किसको क्या मसला है और किस जो नौयत का ये वाकया था। तो मैंने अदालत से ये भी कहा कि हम शाकिर अवान के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हम कानून के मुताबिक उसको अदालत में पेश करें, हम जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं हम उनको देखेंगे, उस पर अदालत से बात करेंगे, लेकिन उनको इस तरह ना रखा जाए। 34 घंटे से वो लापता है। मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया, उन पर मंशियात डाली गई, हमने कोई इतराज नहीं किया। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मंशियात शाकिर अवान पर भी डालकर इसको भी सामने ले आए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट उनकी फैमिली जिस कर्ज से गुजर रही है मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी वालदा कल आई थी, आज वो आ नहीं सकी सेहत की खराबी की वजह से, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर कर लिया और आईजी पंजाब को इन पर्सन आज कहा है कि जुमे की नमाज के बाद वो अदालत में पेश हों और कोशिश करें कि वो शाकिर महमूद अवान को बाजियाब करवाकर लेकर आएं। और साथ ही साथ सेफ सिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी कहा है कि मुकम्मल उस डेट की जब वो उनको लेकर गए हैं रात 2 बजे से ऑनवर्ड कुछ 6 घंटे की वो वीडियो सारी मुकम्मल लेकर अदालत में पेश हों, तो आज ही इस पर कार्रवाई होगी। तो मजीद जो प्रोसीडिंग है वो 3 बजे तक गालिबन मुलतवी की गई है, तो उसके बाद फिर दोबारा अदालत आज की समाअत से मुतालिक हुक्म जारी करे। हाफिज शाकिर के भाई मौजूद हैं, ये मौजूद हैं कि रात को जो कुछ हुआ ये आपको खुद बताते हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं, आज जब समाअत शुरू हुई तो उसमें सबसे जो अहम एक और बात यह भी थी कि हमारी जो पूरी सहाफती कम्युनिटी है वो यहाँ पर मौजूद थी। हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उमर दराज गोंदल साहब, और यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। हमारी एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं राना यासिफ साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद हरून साहब, इसी तरह से नायब सदर शेख जैनुल आबदीन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सुलेमान अवान साहब, इसी तरह से जो दीगर जो अहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के जो नायब सदर हैं नुमान नूर साहब, और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर अफजल सियाल साहब वो यहाँ पर मौजूद थे। मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुस्तहसन शाह साहब, उमर हयात साहब, इसी तरह से एहसान साहब, वकास साहब,
पूरी एक बड़ी कम्युनिटी अदालत में मौजूद थी और ये अदालत को बावर कराया कि ये जो शाकिर महमूद अवान साहब जो हैं ये सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, 15 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये वाकया ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जो कि ग्रां गुजरी है किसी को, तो उसके ऊपर कानून मौजूद है, मुकदमा दर्ज करें, पहले भी करते आए हैं, सहाफ़ियों पर अदालतों में पेश होते रहे हैं, कोई यहाँ से नहीं भागा, तो शाकिर भी नहीं भागेगा। तो जो भी इसके ऊपर इल्जामात है उसको सामने लाया जाए, उस पर फिर अदालत ने आज ये IG पंजाब और दूसरों सेफ सिटी ऑफिसर को ऑर्डर पास। अच्छा, सिर्फ इसमें एक बात आप लोगों के सामने कह दें, मतीउल्लाह जान के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने की पुरजोर मजम्मत है, और जो मनशियात जिन्होंने डाली है उसके ऊपर तो नाजायज उन्होंने रखी है, उल्टा उन लोगों के ऊपर पर्चा होना चाहिए। मतीउल्लाह जान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वो भी झूठे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार हैं। जी शाकिर भाई छोटा भाई है, रात तकरीबन 2 बजे के करीब लोग आए, दीवारें फलांग के 20 तकरीबन 18 से 20 लोग थे, सारे घर की तलाशी ली। जब उनको शाकिर मिल गया उसके बाद फिर भी सारे घर के पोर्शन की तलाशी ली। उसको थोड़ा सा मारा पीटा भी है, वाले साहब को भी थोड़ा हिट किया है, ठीक है। उसके बाद उसको ले गया, उनसे पूछने के बावजूद उनको 3-4 दफ़ा पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, ताकि पता हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। पूछने का वारंट पूछे, कोई चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। उसके दोनों मोबाइल ले लिए, उनकी मिसेज का मोबाइल ले लिया। जाते हुए हमारे घर के पास कैमरा लगा हुआ था, वो भी साथ ले गए। वो डराया कैसे, वो बताए ना लोगों को, हमसायों को डराया। जो लोग हमसायों में से घरों से बाहर निकले, एक एक पुलिस वाला वेपन लेके उनके दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और उनको कहा कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, अंदर से दरवाजा बंद करके जो सुनना सुन लें, बाहर आप लोगों ने नहीं आना। जिसकी वजह से गली में और जो वीडियो आपको आज अदालत में जो चलाई है, आज एक वीडियो दिखाई है जो अदालत ने देखी है और ऑर्डर जारी किए हैं कि उसको बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया। और हम अदालती कार्रवाई पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने इतना सख्त ऑर्डर पास किया है और उम्मीद है कि दोपहर 3 बजे को बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है। अजहर साहब, सर वो जो एक वीडियो है जो आज ये तो इन्होंने तो शक्लों से देखे हुए हैं ना लोग, सारे भाई ने शक्लों से देखे हुए हैं, कुछ सादा लोग थे, उसके अंदर कोई FIA के बंदे भी हैं, यानी वो शक्लें तो शाकिर जब सामने आएगा बता देगा। यानी अब ये कहना कि FIA वगैरह को कोई नहीं पता था, कल जो भी लेकर गया है उन्होंने कोई ना कोई गिरफ्तारी कहीं ना कहीं डालनी है, तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी, शक्लें भी सामने आ जाएंगी। अब उम्मीद है कोई CCTV फुटेज को कोई आग ना लग जाए, कोई कैमरा ना खराब हो जाए, कोई कैमरा ना तोड़ दिया जाए, बड़ी उम्मीद है, वरना सच सामने आएगा। फायरिंग की गई, रात के अंधेरे में गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस की बेपनाह शेलिंग वहां पे की गई। वो लोग वहां पे अपने एक इस्तेजाज के लिए आए थे, अपने फंडामेंटल राइट्स के तहत आए थे, उनका एक वाज़े मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त थे। तो उसको जवाब उन्होंने ये दिया कि उन्होंने नहत्ते अवाम पे गोलियां बरसाई। ये जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि ये फस्तायत है, ये कोई जमहूरी रवैये नहीं है, ना ये कोई जमहूरी हुकूमत है, ये जाली मैंडेट से बनी हुई जो हुकूमत है, इसने जो कुछ किया, ये मुजम्मत तो इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और हाई कोर्ट बार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आना होगा और हमें एक भरपूर मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ेगी। आप देखिए इस मुल्क में जब से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया है, यहां पे एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा है और एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी से यहां पे सब कुछ कर रहे हैं। जो वहां पे नॉन इलेक्टेड वजीर दाखिला और उसके हवारी और उन्होंने रात के अंधेरे में जिस तरह ऑपरेशन किया, ये कोई जमहूरियत नहीं है, ना ये जमहूरी असूल है। तो हमें इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और एक भरपूर मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगी। इन्होंने पहले पार्लियामान के जरिए हमला किया और इस मुल्क में गैर आईनी तरमीम करा के, एक आईनी तरमीम करा के जिस तरह भी इन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेबस नजर आती है। अब जब अवाम सामने आए हैं, अवाम सड़कों पे आए हैं, तो उनको ये जवाब दिया
کہ ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. تو میں نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ میں پھر وہی مطالبہ اپنا آپ سب کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑے گا, ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور ہمیں اس ملک کے بچانے کے لیے, یہاں پہ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک موومنٹ شروع کرنی پڑے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. محبت گولیوں سے بو رہے ہو, زمین کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. جناب صدر, معزز اراکین بار, تحسین پیش کرتا ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, سیلوٹ کرتا ہوں کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد پورے پاکستان میں سینکڑوں بار ایسوسی ایشن ہیں, بار کونسلز ہیں, سینکڑوں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, کتنی مذہبی تنظیمیں ہیں, کتنی سیاسی جماعتیں ہیں. صرف ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس ظلم کے خلاف یہ اجلاس منعقد کیا. یہ چراغ ظلم کے خلاف جل رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ چراغ جلتا رہنا چاہیے. دوستو, ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو پلیٹ فارم ہے, نہ یہ پارٹی اسپیسیفک ہے یا نہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں کہ کون سی جماعت جو ہے اور کون سا جو فرد ہے. ہمارا ایک سماج کے ساتھ معاہدہ ہے, جب ظلم ہوگا, جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی, جب آئین پہ زد پہنچے گی, ہم نے کھڑے ہونا ہے. اس کا کسی کو فائدہ ہو جائے, کسی کو نقصان ہو جائے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اشتیاق صاحب نے ذکر کیا جنرل ڈائر کا. 13 اپریل 1919 کا دن تھا, جلیانوالہ باغ تھا. جنرل ڈائر نے جو آزادی پسند تھے, سکھ, ہندو, مسلمان, ان پر گولی چلائی اور سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ جنرل ڈائر سے بھی بڑا ظلم ہوا ہے. جنرل ڈائر نے اندھیرے میں گولیاں نہیں چلائی تھیں, جنرل ڈائر نے دن کے اجالے میں گولیاں چلائی تھیں. جنرل ڈائر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ پرامن رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جنرل ڈائر نے پہلے ان مظاہرین کے ساتھ گلے مل کر سیلفیاں نہیں بنائی تھیں. جنرل ڈائر نے اندھیرا نہیں کیا تھا. دوستو, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کے آگے ظلم بھی شرما جائے. پوچھتے ہیں کہ یار کتنے بندے شہید ہوئے ہیں, 10 ہوئے ہیں, 300 کہتا ہے, 400 کہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف وہ شخص شہید ہوا جو کنٹینر کے اوپر, اگر ہم کہیں کہ صرف وہی ایک شخص شہید ہوا ہے جو کنٹینر کے ساتھ اوپر بیٹھا ہوا اپنے رب کائنات کے ساتھ تعلق بنا کر سجدہ ریز ہو کر اس سے دعا کر رہا تھا. اسلامی ملک, اسلامک فوج رب کائنات کے آگے سربس وجود ہے. آپ نے اس کو دھکا دیا, اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کنٹینر کو ہاتھ ڈال لیا. اس کی جان پھر بھی بچ سکتی تھی. آپ نے اس کے ہاتھ پر بوٹ مارے اور وہ نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹی اور وہ شہید ہو گیا. دوستوں اور ساتھیوں, ایک اور میں بات آپ کو کرنا چاہوں گا. بہت سے مقررین ہیں کہ جو آپ کے ہمارے لیے سبق کیا ہے اور ہم نے سیکھنا کیا ہے. سبق یہ ہے کہ جو آپ کی بار کے اندر ان ظالموں کے, ان گماشتوں کے ایجنٹ جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں, جو ہم سے طاقت لیتے ہیں, جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں, اپنی معاشی حالت بدلتے ہیں, اب ان اسٹیبلشمنٹ کے ظالموں کے ساتھ بغل گیر ہو چکے ہیں, ان کے صلاحکار بن چکے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں. آپ ووٹ کی طاقت سے ان کو لاہور بار میں اور ہائی کورٹ بار میں عبرت کی نشانی بنا دیں. ان کو کوئی حق نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سے ووٹ لیں اور ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم کرائیں, ملک کے آئین کو برباد کر دیں, ہمارے سارے جو بار کے ادارے تھے انہیں برباد کر دیں.
जुल्म करें और जालिमों के साथ मिल जाएं, उनको अब हमने वादा करें। और मैं एक और बात कहता हूं कि ये जो है अब लकीर खींच दी गई है बार में भी। जो जालिम का साथी है वो एक तरफ है और जो मजलूम का साथी है वो एक तरफ है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने हमसे वोट लेने हैं, उन्हें मजलूमों के साथ होना होगा। जो जालिमों के साथ है हमसे अपने वोट की तवक्को न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर्स कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार और साबिक सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेंबरान लाहौर हाई कोर्ट बार, सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार को। इतने बहुत बड़े साने के बाद ये वाहिद ऐसी आवाज़ आई जो कल भी फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसमें हमारे सदर लाहौर बार हाई कोर्ट वो भी शामिल हुए और हमारे साबिक सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार शामिल हुए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस साने को सख्ती से कंडेम किया और आज इतना भरपूर इजलास इस इशू पर बुलाया। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे दोस्तों ने बहुत सी बातें की। मैं मुअज़्ज़िज़ अरकान के सामने सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि दुनिया में किसी माशरे में, किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि आपके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके चौकीदार, आपकी जानों के रखवाले, आपके टैक्स पेयर, आप सब लोगों के तनख्वाह लेने वाले ये लोग आप पर सीधी गोलियां चलाने लगे। आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डमी वजीर आजम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कल ऑफिशियली इस चीज को तस्लीम किया है कि हमारे सिपह सालार ने इस फितने को खत्म करने में हमारा भरपूर साथ दिया है। उन्होंने पूरी तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे आर्मी चीफ को इसमें शामिल किया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे यहां पर सारे भाई हैं। ये आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ एक पार्टी के साथ हुआ है। ये हमारे निहत्ते शहरियों के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है जिसकी अभी तक तफसीलात नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज हैं। हमारे यहाँ पर हमारे भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ILM से है। हमारे ऐसे भी भाई मौजूद हैं जो कि पीपल्स लाइफ फोरम से उनका ताल्लुक है। हमारे मुस्लिम लीगी भाई हमारे वकला में मौजूद हैं। उनकी सारी जिंदगियां रूल ऑफ लॉ के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ्फुज़ के लिए लगी हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको एक पार्टी का मसला ना समझें, खुदा रहा इस चीज को समझें। और ये जो जिस लेवल की सफाकियत इस वक्त हमारे मुल्क में नाफिज की गई है, ये सिर्फ मार्शल लॉ भी नहीं है बल्कि ये मार्शल लॉ प्रो मैक्स है। और अगर आज हमने होश के नाखून ना लिए तो मैं बड़े ही बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये हमारा मुल्क शदीद खतरे में है। आज हमें होश के नाखून लेना चाहिए। आज एक जो तहरीक 26वीं गैर आईनी तरमीम के लिए जो प्रोफेशनल ग्रुप ने शुरू की है, खुदार आप उसका साथ दें। 26वीं आईनी तरमीम जो सो कॉल्ड है, उसके नतीजे में हमारी सुपीरियर जुडिशरी को इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, उनको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया गया है। उसका मुजाहरा आपने कल रात के वाक़े में देखा है कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ और किसी जज की ये हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उनको पर इख्तियार ही नहीं है कि वो इसका नोटिस ले सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि परसों ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन इसी हाई कोर्ट में मुनक्किद हो रहा है। मैं अपने सब पार्टी से एफिलिएटेड अपने भाइयों, वकला भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भरपूर तरीके से उस कन्वेंशन में हिस्सा लें और 26वीं आईनी तरमीम जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक ना हमारा ये प्रोफेशन है, ना हमारा ये इंस्टीट्यूशन है और हमारे मुल्क को भी शदीद खतरा है। आपका बहुत शुक्रिया।